So what is in decimation in frequency? It is just the transpose of DIT FFT. How can we say it is transpose of DIT FFT? It means the structure of butterfly become reversed if we are if we are adopting the approach of FFT by using DIF. Here we can see it is a transpose. अगर मैं आपसे पूछूं कि transpose matrix क्या होता है, if we take the transpose of any matrix, what will happen? सर जो रोज होते हैं और कॉलम बन जाते हैं. Definitely rows becomes columns and vice versa. So if you take the transpose of any matrix, it will change from rows to column and columns to rows. So similarly, if you are using the DIF FFT approach, means decimation and frequency, the whole structure, whole butterfly structure जो है become reverse. So here we can see how this will change the butterfly diagram. So as far as efficiency is concerned, तो overall structure जो है, अगर if you compare the structure of DIT and DIF, is then number of stages become same, number of butterfly becomes same. But what is the main difference? The main difference is that के both butterflies positions is going to be reverse. It means if we are approaching like if there is a 2-point DFT, then 4-point DFT, then 8-point DFT, it is progressing like this. Then now it will be starting from 8-point DFT, 4-point, 2-point, and so on. So we can see in this diagram, as far as approach is concerned, किस तरह उसको solve करना है, it is all same. अब ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को अब लेके चलते हैं. एज वी आर ऑलरेडी फेमिलियर विद द DIT approach. So here what we have to do, just let me zoom it. So we have a given function xn equal to cos n pi over 2, where n is equal to 4, using DIF FFT algorithm. आपको जो है इसको सॉल्व करना है. ऑब्वियसली n 4 है तो आपको 4-point DFT यूज करना है. तो if we are using 4-point DFT, how many stages should be there? सर 2 स्टेजेस होंगे या? Definitely there should be 2 stages over there. So from the above function, we have calculated the number values of samples. As you know, xn cos n pi है, तो n की वैल्यू हम 0 प्लेस करेंगे तो क्या होगा, 1 प्लेस करेंगे और हम 3 तक जाएंगे. तो अल्टीमेटली वी हैव टू सॉल्व दिस सीक्वेंस. अब इसका अगर हम DIF बटरफ्लाई डायग्राम बनाते हैं, तो अब आप देखें चेंजिंग क्या आ रही है. मैंने इसी वजह से मैंने यहाँ पर ये जो मैंने डायग्राम राइट हैंड साइड पे बनाई है, ये DIT की है, जो कि हम अभी तक सॉल्व करते हुए आ रहे हैं. अब आप देखें दोनों में डिफरेंस क्या है. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द डिफरेंस के as far as DIT is concerned. In DIT, what we are doing, we have to take the 2-point DFT and make their butterfly diagram. Then in the second stage, we have to cover the overall lines and get the bigger butterflies so that the every line will be covered. अब यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पर आप देखें, गौर करें तो यही डायग्राम जो है ना, हमने रिवर्स कर दिए, फ्लैप कर दिए. ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन, ये हमने फर्स्ट स्टेज में लेके आ गए, और ये वाला पोर्शन जो है हम सेकंड स्टेज में लेके आ गए. ये डिफरेंस है. अगर आप यहाँ पर देखें तो हमने ये जो डायग्राम है, जस्ट लेट मी क्लियर, ये है DIT की डायग्राम जो अभी तक हम सॉल्व करते हुए आ रहे हैं ना. दिस इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी डन इन द प्रीवियस क्लासेस, which was DIT, decimation in time. Now we have to
अप्लाई द अप्रोच ऑफ DIF। तो DIF में जो है बेसिकली हम कर रहे क्या है कि इन दोनों स्टेजेस में जो बटरफ्लाई जो हमने डेवलप किए हैं, इनकी जो पोजीशन है वो हम जो है ना स्वैप कर देंगे। यू कैन सी, एज यू कैन सी इन DIT, आपके पास यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर सेकेंड स्टेज में है वो DIF में कहाँ पर है? DIF में ये फर्स्ट स्टेज पर है। इसको अगर हम देखें, ये यहाँ पर आ गए। आ रही है बात समझ में? जी सर। यस सर। इसी तरह अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, इसी तरह अगर जब हम सेकेंड स्टेज की बात करते हैं, यानी सेकेंड स्टेज को हमने फर्स्ट स्टेज कर दिया, और ये वाला फर्स्ट स्टेज जो है ये क्या हो गया, ये यहाँ पर जो है सेकेंड स्टेज हो। क्लियर? यस सर। गुड। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो प्लीज पूछें यहाँ पे, अगर क्लियर है तो हम आगे चलते हैं। 36 एनी कंफ्यूजन? सर ये W0 जी जी बोलें। होगा या यहाँ पर 02 था हमारे पास। थोड़ा सा इसको रिपीट कीजिएगा आप एक बार। सर जैसे इसमें डेसिमेशन टाइम में 02 था ना हमारे पास फर्स्ट स्टेज में जी W02। जी 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 सर यहाँ पर W04 है। जी जी। सर ये फर्स्ट क्यों हो रहा है स्टेज ये में तो हमने, पूछना चाह रहे हैं? यस सर ये। ये एक्चुअली डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर देखें ना, आप ये डिपेंड करता है कि हाउ मेनी DFT पॉइंट्स यू आर टेकिंग देयर। सो इफ यू कैन सी इन दिस स्टेज 1 फॉर DIF, हाउ मेनी पॉइंट आर यू आर टेकिंग। तो बटरफ्लाई इज कवरिंग ऑलमोस्ट जो है ना 4 आपके पास जो है ना पॉइंट है। तो आप जो बटरफ्लाई की जो साइज है ना उसके हिसाब से आप W40 दे रहे हो ना, जितना यहाँ पर हम दे रहे हैं, यहाँ पर 2 लाइन को कवर कर रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर W02 दे देते हैं यहाँ पर, ये 2 लाइंस को कवर कर रहा है। इसी तरह आपको ये देखना है कि बटरफ्लाई कितनी लाइंस को कवर कर रहा है ना। यस सर मैं यही पूछ रहा हूँ सर, सेकंड स्टेज में तो 2 लाइन को कवर कर रहा है ना, तो वहाँ पर हमने जी W04 दिया है। अ, इस वाली DIF वाली डायग्राम की बात कर रहे हो आप? यस सर DIF वाली। हाँ जी जी जी, मैं आपको समझाता हूँ। असल में होता ये है कि मैंने आपको बताया था कि वी कैन टेक 2 अप्रोचेस। दो अप्रोच क्या होती है, या तो हम स्टेज वाइज जो है ना W को मेंशन कर लें, अगर स्टेज वाइज मेंशन कर रहे हैं, या तो फिर ओवरऑल W को मेंशन करें। तो यहाँ पर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको स्टेज वाइज कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपको देखना पड़ेगा कि बटरफ्लाई कितनी लाइंस कवर कर रहा है, और जितनी लाइंस कवर करेगा उसके हिसाब से आप उसको जो है ना मेंशन करेंगे। अगर आप ये अप्रोच लेके चलते हैं तो आपको फिर डिफरेंटली जो है ना वो आपको W की वैल्यू प्लेस करनी पड़ेगी, मतलब जो इसका जो सबस्क्रिप्ट है वो डिफरेंट हो जाएगा। अगर आप इसको ओवरऑल लेते हैं, जिस तरह वी आर कैलकुलेटिंग द 4 पॉइंट DFT, तो यू कैन राइट W4 एवरीवेयर, जहां भी आपको चाहे वो फर्स्ट स्टेज हो चाहे वो सेकंड स्टेज हो, तो कोई मिस्टेक नहीं है इसमें। ठीक है सर सर। W04 वाली बात समझ नहीं आई। मैं इसको दोबारा रिपीट करता हूँ। 36 आपको क्लियर हुआ? जी सर क्लियर है, मतलब सर अगर हाँ हम W02 भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी जी, मैंने ये वहाँ पर आप देखेंगे ना बटरफ्लाई डायग्राम,
तो होता इसमें ये है कि या तो आप देखेंगे कि यार हर स्टेज पे जो है ना डब्ल्यू के जो सबस्क्रिप्ट है ना वो 8 लिखा हुआ है या 4 लिखा हुआ है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन सा डीएफटी कैलकुलेट कर रहे हैं, रिगार्डलेस के वो कौन से स्टेज पर है उसको नहीं देखा गया। एक अप्रोच तो ये है। दूसरी अप्रोच ये है कि आप जो है ना स्टेज वाइज जो है ना वो डब्ल्यू का जो सबस्क्रिप्ट मेंशन कर दें, वो और ज़्यादा प्रिसाइज हो जाता है। जिस तरह इस केस में, जिस तरह अगर राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं, इस केस में हमने यहाँ पर W20 दिया है, इस केस में हमने W20 दिया है और यहाँ पर W4 दिया। ये जो है ना ये स्टेज पे डिपेंड, स्टेज के हिसाब से हमने दिया है कि ये फर्स्ट स्टेज में क्योंकि ये 2 पॉइंट है तो हमने W20 दे दिया, सेकंड स्टेज में क्योंकि ये 4 पॉइंट है तो हमने 4 दे दिया। यहाँ पर अगर मैं मेंशन कर रहा हूँ, यहाँ पर जब मैं W40 दे रहा हूँ तो ये हर स्टेज पे W40, तो यानी ये कोई मिस्टेक जो नहीं है, ये आपके ऊपर है कि आप कौन सी अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। तो अगर आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है कि यार फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, तो आप बड़ा आसान है, आप उसका सबस्क्रिप्ट आपको देखेंगे क्वेश्चन में क्या गिवन है। इफ इट इज गिवन कि कैलकुलेट द 8 पॉइंट डीएफटी, देन यू कैन राइट 8 एज अ सबस्क्रिप्ट इन एवरी स्टेज, इट विल नॉट क्रिएट एनी कंफ्यूजन। और अगर आपको इस पे कंफ्यूजन हो रही है कि यार 8 हम क्यों लिख रहे हैं, हम स्टेज तो फर्स्ट में ये 2 पॉइंट ले रहे हैं, सेकंड में 4 पॉइंट ले रहे हैं, थर्ड में 8 पॉइंट ले रहे हैं, तो इसको अगर आपको ये चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो फिर आप इंडिविजुअली कर लें, तो ये इससे कोई मतलब रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। क्लियर? जी सर सही है। अच्छा, आप यस सर, क्लियर। 36 के अलावा कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे, आपको क्लियर हो गया? जी सर हो गया। ठीक है। अच्छा, अब हम इसको जो है ना थोड़ा सा इसको हम डिस्कस करते हैं सर कि इसकी वैल्यू। जी एक जी। क्वेश्चन सर। हाँ हाँ सर वो बोले। डेसिमेशन टाइम का जो एल्गोरिथम है सर, उसका हम्म। आउटपुट टाइम डोमेन में आता है। डेसिमेशन इन टाइम, थोड़ा सा लाउडली बोलो, मुझे आवाज कम आ रही है यार। सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ हाँ। जो डेसिमेशन टाइम का एल्गोरिथम है हमारे पास, हम्म। उसका आउटपुट टाइम डोमेन में आता है, तो फिर वो हमारे पास नहीं डीएफटी कैसे नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, टाइम डोमेन में नहीं आता, फ्रीक्वेंसी डोमेन में आता है। सर फ्रिक्वेंसी डोमेन में आता है। जी जी। तो सर फिर इन डेसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी और डेसिमेशन इन टाइम दो अलग अलग क्यों यूज कर रहे हैं सर? जी जी, मैं बताता हूँ। देखो, डेसिमेशन इन टाइम का मतलब क्या है, डेसिमेशन का टाइम ये डेसिमेशन इन टाइम का मतलब ये है, मैंने फिजिकल क्लासेस में भी आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर हम किसी भी सीक्वेंस का अगर हम डीएफटी लेते हैं, तो हमारे पास ये डीएफटी अगर मैं ले रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पर टाइम होता है और आपके पास यहाँ पर फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है ना। यही होता है ना कि हमने डिस्क्रीट सैंपल्स हमने दिए और आपको जो फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसका जो है आउटपुट आपको मिल गया, यही होता है। यस सर यही हो। यही होता है ना, ठीक है ना। अब जब हम इसमें जो अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं, एफएफटी अप्रोच अप्लाई कर रहे हैं और उसमें हम डीआईटी ले रहे हैं, तो एफएफटी डीआईटी का मतलब ये है कि मैं जो डिसीमेशन कर रहा हूँ, मैं जो ब्रेकअप कर रहा हूँ, वो इस साइड पे कर रहा हूँ। मतलब टाइम के यानी विथ रिस्पेक्ट टू इनपुट में जो है ना वो डिसीमेशन करता जा रहा हूँ। यानी मैंने डिसीमेशन जो स्टार्ट की है वो इनपुट साइड से स्टार्ट। ठीक है सर। ठीक है। इसी तरह अगर जब मैं डिसीमेशन एंड फ्रीक्वेंसी करूंगा, तो डिसीमेशन एंड फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो डिसीमेशन जो हो रही है वो फ्रीक्वेंसी वाली साइड से हो रही है, यानी आउटपुट वाली साइड से हो रही है। तो सर इन दोनों में ठीक है। एडवांटेज क्या है हमारे पास, मतलब कि कोई कोई इनपुट पे एडवांटेज करना नहीं हो? है दोनों। हाँ देखो, असल में होता ये है कि दोनों की अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूं, दोनों के अगर रिजल्ट की बात करूं, तो इन दोनों में एज सच कोई भी फर्क नहीं है। यानी अगर हम कहेंगे रिजल्ट में क्या डिफरेंस आएगा, कौन सी वाली ज़्यादा फास्ट है, कौन सी वाली ज़्यादा वो है, तो एज फार एज रिजल्ट आर कंसर्न तकरीबन दोनों सेम ही है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। एक डिफरेंट अप्रोच है। अब अगर 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 डीआईटी आप ले रहे हैं, बहुत सारी जब आप सॉल्व करते हैं, तो हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट को डीआईटी ज़्यादा आसान लग रही हो, कुछ को डीआईएफ आसान लग रही हो, तो ये एक अप्रोच ली। ठीक है सर। सर बाकी दोनों मेथड हर जगह यूज हो सकते हैं। हर जगह यूज हो सकता है। अब देखो ना, दोनों जो है ना ओके सर। ट्रांसपोज हैं, दोनों ट्रांसपोज हैं।
ठीक है सर। अब डायग्राम को ही देख लो, डायग्राम में भी देखें। अच्छा, सबसे अभी मैं जो चीज डिस्कस करने जा रहा था तो वो मैं भी डिस्कस करूंगा। आई होप के इट विल मोर क्लियर कि आपकी जो इसको मैं वन बाय वन, अभी क्वेश्चन तो नहीं है कोई 04? नहीं सर, बस क्लियर है। ओके ओके। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर हम देखते हैं तो इसकी अगर वैल्यूज़ के हिसाब से देखेंगे ना तो और ज़्यादा क्लियर होगा कि आपके पास, इसको मैं जूम करता हूँ। अब इस डायग्राम पे हम आते हैं ना। इस डायग्राम पे आप देखें कि इनमें जो आपको पता है कि डीआईटी में जब हम ले रहे थे तो बाय यूजिंग द बिट रिवर्सल अप्रोच, तो हमारे पास जो हम ले रहे थे कि 0 2 4 0 2 और 1 3 ले रहे थे हम। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर रहे, ये एज इट इज पड़ा हुआ है 0 1 2 3। ठीक है, यानी अब हम इनपुट साइड पर हम कुछ भी नहीं कर रहे। आपको जो डिफरेंस डायग्राम में नजर आएगा, एक तो बटरफ्लाई की पोजीशन से पता चलेगा कि बटरफ्लाई की पोजीशन हमने स्वैप कर दी। जो डीआईटी में फर्स्ट स्टेज था, अब वो डीआईएफ में सेकंड स्टेज हो गया। इसी तरह इसका वाइस वर्सा हो गया। दूसरी चेंजिंग क्या आएगी कि आपके पास जो बिट रिवर्सल जो आप अप्रोच ले रहे थे, आप डीआईटी में ले रहे थे, अब इनपुट साइड पे ले रहे थे, अब वही चीज़ आप आउटपुट साइड पे लेंगे। अगर आप देखें कि यहाँ पर आप देखें चेंजिंग में यहाँ लेके आ रहा हूँ, यहाँ पर कोई चेंजिंग नहीं है, ये एज इट इज़ है। जबकि डीआईटी में क्या था, यही चीज़ जो है वो, यहाँ पर देखें डीआईटी में ये चीज़ जो है वो बिल्कुल सेम थी, 0 1 2 3 था। और इसमें हम चेंजिंग लेके आ रहे थे विद द हेल्प ऑफ बिट रिवर्सल। ये 0 था, 2 था, 1 3, जबकि यही चीज़ यहाँ पर सेम आ गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? कि आपका जो इनपुट और आउटपुट का जो आपके जो टर्मिनल्स हैं जो कि आपके सीक्वेंस को इंडिकेट कर रहे हैं, दे आर changing with respect to the approach. If it is DIT, input side is going to be changed on the basis of bit reversal. If it is DIF, output side is changing with respect to bit reversal. Clear? ये चीज क्लियर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन की है, या कंफ्यूजन है अभी भी? यस सर, क्लियर। नहीं सर, क्लियर है। क्लियर है ना? बस सब चीज़ें जो है ना, आप ये देखें कि पहले अगर इनपुट साइड पर डीआईटी में जब हम इनपुट साइड पर सारा जो है चेंजिंग कर रहे थे, मतलब सीक्वेंस के सैम्पल्स की पोजीशंस को, अब वही चीज़ आउटपुट साइड पे होगी, इन फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगी। देयरफॉर वी कॉल इट अ डिसिमेशन इन फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर जाते हैं तो वही बटरफ्लाई की तो वही पोजीशन है। आई थिंक आई डोंट हैव टू एक्सप्लेन दिस कि ये बटरफ्लाई वही उसी अप्रोच से बनाए गए और ये 2 पॉइंट है। अब जो इसकी जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, उसी बेसिस पे होगी जिस तरह हम पहले कर रहे थे। बट आपको ये देखना है, जब आप इसका रिजल्ट लिखेंगे, इसका रिजल्ट जो लिखेंगे वो क्या होगा। अगर मैं इसका रिजल्ट लिखूंगा तो ये x0, ये इसकी वैल्यू 0 है, 0 है, 2 और 3 है। तो इसका जो रिजल्ट जब आप मेंशन करेंगे तो वो आप सीक्वेंस में मेंशन करेंगे, इसी तरह मेंशन नहीं करेंगे आप। यानी आप इसका जो रिजल्ट है जो कि फ्रीक्वेंसी डोमेन में होगा वो x0 x1 x2 x3 की फॉर्म में करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 0 2 0 2। ये मोस्टली स्टूडेंट से यही मिस्टेक होती है कि जो वहाँ पर वैल्यूज़ लिखी हुई होती हैं वो हमने एज इट इज़ ही वहाँ पर नीचे लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इस चीज़ का जहन में रखना पड़ेगा, पर्टिकुलरली इन DIF आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप जो है उसी आपको जो है ना वो जो ऑर्डर है सैंपल्स का, उसी ऑर्डर में ही मेंशन करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 0 है तो उसके बाद आप दोबारा, बट आफ्टर x ऑफ 0 यू हैव टू राइट x ऑफ 1, जो कि आपको मेन रिजल्ट जो आप फाइनल रिजल्ट आप लिखेंगे आफ्टर कैलकुलेटिंग द
DFT by DIF, तो जो फाइनल रिजल्ट होगा इट शुड बी इन द कन्वेंशनल ऑर्डर, जो कि x0 x1 x2 एंड सो ऑन हो जाएगा। क्लियर? सर ये पहला स्टेज आप थोड़ा सा अगर बता दें बटरफ्लाई का। पहले स्टेज बिल्कुल उसी तरह ही है जिस तरह DIT का सेकंड स्टेज था। DIT का सेकंड स्टेज हमने कैसे बनाया था, ये रहा, मैं इसको DIT का सेकंड स्टेज हमने कैसे बनाया था, याद है कुछ? हाँ बताओ, DIT का सेकंड स्टेज हमने कैसे बनाया था? सर ये जो x0 वाली वैल्यू आ रही थी उसको हम जो सेकंड बटरफ्लाई है उसके टॉप के साथ लेके जाते थे, उधर ऐड कर देते थे। इसी तरह बॉटम को बिल्कुल बॉटम बिल्कुल, से वही अप्रोच है, वही अप्रोच है। आप देखें दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इसको कंपेयर करें, क्या डिफरेंस है। यानी हमने यही किया था ना कि अगर आप इसकी जो शुरू वाले लेक्चर्स में देख लें, जब हम इसको डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें टॉप और बॉटम लाइंस का कॉन्सेप्ट था कि टॉप लाइंस जो है वो टॉप वाला बटरफ्लाई बॉटम से, बॉटम वाला बटरफ्लाई टॉप से कनेक्ट हो रहा था। जी सर ठीक है। वो बस जो थर्ड पॉइंट है उसमें 1+2 लिखा हुआ है ना, इस वजह से कंफ्यूजन होती है। 1+2 लिखा हुआ है, तो x0 की वैल्यू क्या है? 1 होगा ना सर? एक मिनट मैं इसको चेक करता हूँ, मे बी मुझसे मिस्टेक हुई हो। अच्छा, आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये इसकी वैल्यू आ गई 1 आ गई। अच्छा, और x2 की वैल्यू जो है, x2 की वैल्यू -1 है। x2 की वैल्यू -1। -1 है ना, -1 है, -1 इंटू -1 ये हो जाएगा +1। तो हाँ, या ये मुझसे मिस्टेक हुई है, एक मिनट मैं इसको सही कर देता हूँ। ये यहाँ 1 होना चाहिए ना, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? जी सर, इसकी वजह से मैं देख रहा था कि इधर 2 कैसा है। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके। अच्छा, अब हम जो है इसको जो है यहाँ पर ये मैंने ये डायग्राम जो है, ये जो है ये 8 पॉइंट DIF FFT डायग्राम है। अब देखें वही चीज़ है, आपने सिर्फ क्या किया है, अगर हम यहाँ पर अगर हम गौर करते हैं, हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है कि यहाँ पर जो है ये हमारा जो है ना थर्ड स्टेज था। अगर हम DIT की बात कर रहे थे, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट स्टेज हो जाएगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। अब आप देखें यहाँ पर जिस तरह 36 पूछ रहे थे कि सर ये अगर फिर हम W4 दे रहे हैं, कहीं पर W2 दे रहे हैं। अब यहाँ पर देखें अप्रोच क्या ली गई है कि चाहे स्टेज कोई भी हो, आपने सबस्क्रिप्ट जो है ना वो यहाँ पर 8 दिया हुआ है। 36 आपको नज़र आ रहा है ये, कि आप देखेंगे किसी भी स्टेज में अगर हम देखते हैं कि आपके पास जो है ना ये 8 दिया हुआ है, ये क्या इंडिकेट कर रहा है इससे? सर मतलब हमने ओवरऑल जो है वो 8। ओवरऑल रेट दे दिया है। अब इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है? दूसरी अप्रोच ये हो सकती है कि यहाँ पर आप इस फर्स्ट स्टेज पे 2 2 कर दें, इसमें हर जगह पे, यानी ये फर्स्ट स्टेज है, इसमें आप 2 2 कर दें, उसके बाद यहाँ पर 4 कर दें, उसके बाद यहाँ 8 कर दें। ये आपके ये दोनों अप्रोचेस डिफरेंट हैं, लेकिन इनका रिजल्ट में कोई इफेक्ट नहीं आता, सेम ही है। क्लियर? सही है, आगे चलें या कोई क्लियर। है कंफ्यूजन तो बात इस डायग्राम पे गौर करें, अगर कोई चीज़ पूछनी हो तो। अगर इसको कंपेयर करेंगे 8 पॉइंट DFT से, तो वही सेम ही है, बस वो स्टेजेस में हमने स्वैप किया है। दूसरी चीज़ जो मैं बार बार कह रहा था कि इसमें हमने देखो ना, जो हम कहते हैं ना डिसीमेशन एंड फ्रीक्वेंसी, तो ये देखें यहाँ पर जो चीज़ हो रही है ना, यहाँ पर हमने इसको जो है ना वो 0 4 2 6 जो वो जो ऑर्डर हम ले रहे हैं डिपेंडिंग अपॉन द बिट रिवर्सल,
उसके हिसाब से ये आ रहा है। यहाँ पर हमने कोई चेंजिंग नहीं की है, ये एज इट इज है। इनपुट साइड पर हमने कोई चेंजिंग नहीं की, आउटपुट साइड पे हो रही है। जबकि DIT में क्या हो रहा था, इनपुट साइड पर हम चेंज कर रहे थे, आउटपुट का जो ऑर्डर है वो एज इट इज था। लेकिन यहाँ पर जो मैं अगेन में आई रिपीट दिस पॉइंट कि व्हेन यू आर फाइनलाइजिंग योर रिजल्ट यू विल गेट द पॉइंट ऑफ x0 4 2 सबके रिजल्ट हो गए। तो जब आप x ऑफ k निकालोगे, जब आप x ऑफ k निकालोगे और उसकी वैल्यू जब आप यहाँ पर मेंशन करोगे तो उसका जो ऑर्डर है वो आपको वही जो ओरिजिनल है वही रखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि आप x0 x4 x2 इस तरह लिखोगे। x0 के बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप क्या लिखोगे, इसके बाद आप अगर इसके बाद आप नेक्स्ट वैल्यू क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू लिखोगे x ऑफ 1 फिर x ऑफ 2। ये चीज़ ध्यान में रखना, ये अमूमन जो है ना स्टूडेंट से मिस्टेक होती है। Because when we are writing the frequency domain, discrete frequency domain, we have to mention each and every point in order, x0 x1 x2 x3 x4 x5 and so on. Clear है ये point? यस सर, क्लियर है। Okay. अच्छा, अब हम जो है ना इसके कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। स्क्रीन शेयर हो रहा है? स्क्रीन शेयर हो रहा है जी सर, सबको? जी जी। ओके। अच्छा, अब ये एक एग्जांपल है कि हमारे पास find x of k using, यहाँ पर DIF है, मेरे ख्याल में शेड की वजह से ये नज़र नहीं आ रहा, ये DIF एल्गोरिथम है। यानी आपके पास 8 पॉइंट DFT आपको मालूम करना है बाय यूजिंग DIF एल्गोरिथम। अब DIF एल्गोरिथम के लिए हमने जो है यहाँ पर आसानी के लिए ये वैल्यूज़ पहले से कैलकुलेट की हुई हैं, बिकॉज ड्यू टू द रिपीटेशन आपके पास यही वैल्यू आएंगी, W81 W28 W38 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। W2 ये वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। और उसके बाद अगर हम इसकी नेक्स्ट डायग्राम पे देखते हैं तो अच्छा, ये डायग्राम समझाने की ज़रूरत तो नहीं है, मैंने पहले भी बताई है, रिपीटेशन जो हो रही है हमारे पास। ये मैंने एक्सप्लेन की थी ना डायग्राम, जो अगर हम 4 पॉइंट ले जी रहे हैं या 8 पॉइंट ले रहे हैं तो जो आपकी रिपीटेशन हो रही है, ठीक है ना। तो आपके पास हाँ इस डायग्राम, ये इसका जो है सॉल्यूशन है। अब इसमें अगर देखते हैं, अगर हम यहाँ पर ये जो वैल्यूज़ जो हमने कैलकुलेट की हुई ना, ये ऑलरेडी कैलकुलेट किए ताकि हमें आसानी हो कि हम उसको प्लेस कर सकें। तो ये आपके पास वैल्यूज़, ये डायग्राम है। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि आपके पास आप अप्रोच कैसे लेंगे। आप अप्रोच आपकी ये होगी कि आप स्टार्ट करेंगे 8 पॉइंट DFT की हमने एग्जांपल की थी DIT में, मैंने करवाई तो थी एग्जांपल DIT में 8 पॉइंट की। सर, 4 पॉइंट की 8 पॉइंट की मैंने डायग्राम डिस्कस तो की थी ना, मुझे याद आ रहा है। डायग्राम आपने शायद डिस्कस की थी, हाँ, उसमें वैल्यूज एग्जांपल नहीं वगैरह भी की मैं। थी सर। अच्छा, तो एक काम हम ये करते हैं ना, इसको इसका 8 पॉइंट बना लोगे स्ट्रक्चर, अभी बटरफ्लाई बना लोगे?
आई एम टॉकिंग टू एवरीवन। इसका 8 पॉइंट DIT अगर आप बना लो तो उससे आपको आसानी ये होगी कि इसको आप, चलें इसको हम DIF को डिस्कस कर लेते हैं, फिर DIT आप बना लीजिएगा इसका ना, आपको फिर अच्छा DIF में हम क्या कर रहे हैं, आपके पास ऑब्वियसली ये आपके पास 8 पॉइंट DFT है, तो आपके पास जो बटरफ्लाई जो आप बना रहे हैं, आप देखें टॉप टू बॉटम है। अगर हम इस बटरफ्लाई की बात करें, अगर मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, ये आ गया। और ये एक बटरफ्लाई आ गया। इसी तरह टॉप टू बॉटम लाइंस जो है ना बटरफ्लाई आप बनाते जाएंगे। यहाँ पर ये आ गया और या एंड सो ऑन। अब आप डिसिमेशन देखें किस साइड पर हो रही है, इनपुट साइड पर हो रही है, आउटपुट साइड पर हो रही है। इनपुट साइड पे हो रही सर है, आउटपुट साइड पर हो रही है। आउटपुट। आउटपुट साइड पर हो रही है। अब आप देखें यहाँ पर इसको स्टेप बाय स्टेप इसको अगर आप डिस्कस करें, इसको अगर आप यहाँ पर देखें पॉइंट टू पॉइंट, आप देखें कि यहाँ पर आपके पास क्या चीज़ें आ रही हैं। अब आपको करना ये है कि जब हम ये डिस्कस कर लेते हैं तो इसी का आप DIT बनाइएगा, तो आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे हो रहा है। तो DIT में हम जो है वो 2 पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, फिर 2 4 और इस तरह 8 हो जाता है। इस तरह DIF में हम जो है वो मतलब 8 4 2 इस तरह जो है वो डाउनवर्ड जो है, यानी हम डिसेंडिंग में जो है वो अप्रोच कर रहे हैं। यस क्लियर है। अब यहाँ पर कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो बता दें। बटरफ्लाई हमने उसी तरह ही बनाया जिस तरह DIT में बनाते हैं, सिर्फ हमने उसकी जो है ना पोजीशन जो है वो स्वैप कर दी है। यस 36 क्लियर है। जी सर क्लियर है।
इसको जब तक आप खुद हाथ से नहीं बनाएंगे ना तब तक ही मतलब आपको कंप्लीटली क्लियर नहीं होगा। अभी आप भले हाँ में हाँ मिला रहे हैं, लेकिन जब तक आप इसको खुद से नहीं बनाएंगे ना, सिर्फ डायग्राम में देखेंगे तो आपको। यस सर, एक बार बनाना पड़ेगा। जी जी जी। तो इसी वजह से मैं ये कह रहा हूँ, जिस तरह नेक्स्ट जो क्लास, फिर हम इसको जो है ना DIF को जो है ना, तो अगर आप कंपेयर करेंगे तो आपको बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो इसका जो है ना DIT जो है ना नेक्स्ट क्लास में आप सबको बना के आना है। मैं रेंडमली किसी से भी पूछ सकता हूँ, तो उससे फिर मैं स्क्रीन शेयर करवा के उससे वो मैं डिस्कस कर लूँगा। इसका जो है ना 8 पॉइंट DIT मुझे बना के दिखाइएगा। ठीक है, जब हम रिजल्ट लिखेंगे, अगेन मैं वही चीज़ बता रहा हूँ, जब इसका हम रिजल्ट लिखेंगे तो यस, एनी क्वेश्चन? नो इसका क्वेश्चन इसका सर। जब हम रिजल्ट, जी जी जी, इसका इसका जब हम रिजल्ट लिखेंगे, ये इसका रिजल्ट है। अब जब आप इसका रिजल्ट मेंशन करेंगे तो आप इसका रिजल्ट 20 0 इस तरह नहीं लिखेंगे कि 20 0 0 0 फिर ये आपके पास आ गए, इस तरह नहीं लिखेंगे। आपको इस ऑर्डर उसी को मेंशन करना पड़ेगा ऑर्डर में। जिस तरह x0 के बाद क्या आएगा, x1 आएगा, इस तरह x2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इसका अगर हम रिजल्ट देखते हैं तो इसका जो रिजल्ट है वो ये मेंशन किया हुआ है यहाँ पर, ये इसका आंसर है। अब आप देखें, ये इसका आंसर जो है ना, वो जो कन्वेंशनल ऑर्डर होता है किसी भी सैंपल को डिस्क्राइब करने के लिए, चाहे वो फ्रिक्वेंसी में हो या टाइम डोमेन में हो, तो वी कैन डिस्क्राइब इन ऑफ 0 x ऑफ 1 2 3 4 एंड शो ऑन। तो इस तरह मेंशन किया गया। जिस तरह यहाँ पर x ऑफ 7 जो है, J2 पॉइंट, यानी ये पूरा ही कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, मैंने इसको मेंशन किया, ये पूरा नंबर है x ऑफ 7। अगर आप देखें कि x ऑफ 7 आपके पास क्या है, ये आ गया, देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास क्या है कि आपके पास जो है x ऑफ n जो है ना एक फंक्शन गिवन है। x ऑफ n एक फंक्शन गिवन है और आपको 8 पॉइंट DFT निकालना है बाय यूजिंग DIF FFT। वही सेम अप्रोच है आपके पास। ये तो आपके पास ये वही रहेंगे, वैल्यूज़ वही रहेंगी। और मतलब इट इज़ काइंड ऑफ सेम एग्जांपल बट विद डिफरेंट वैल्यूज। इट इज़ जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो इसकी मैं डायग्राम आपको शो नहीं कर रहा हूँ इसमें। ये इसका क्वेश्चन जो है, ये जो है ना, ये आप खुद से सॉल्व कीजिएगा DIF में। इसका अगर आपके पास, आप आई होप के सबके पास सेल फोन होगा, इसका अगर आप स्नैपशॉट ले लें, या मैं इसका जो है ना स्नैपशॉट उसमें दे दूंगा, चेक बॉक्स में दे दूंगा। इसका आपको जो है ना DIT निकालना है, ओ सॉरी DIF निकालना है। पहले वाले क्वेश्चन का जो भी हमने डिस्कस किया DIF का, उसका आपको क्या निकालना है, DIT निकालना है। यू हैव टू प्लॉट द डायग्राम ऑफ DIT। और इसका क्या करना है, इसका क्या निकालना है, DIF निकालना है आपको। सर आप स्लाइड शेयर कर देंगे सर, जो पिछली हमें एग्जांपल की मैं है। जी जी जी, मैं स्लाइड शेयर कर, पिछली एग्जाम्पल की समझा नहीं, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं या कौन सी वाली? जी सर, एग्जांपल 1 जो अभी पहले डिस्कस किया ना सर। हाँ हाँ, मैं स्लाइड कर देता हूँ, वो स्लाइड शेयर कर देता हूँ ताकि फिर उसमें आपको जो है ना आसानी हो जाएगी। लेकिन इसका जो है ना, मैं ये वाला पोर्शन में नहीं कर रहा हूँ, ताकि ये आप खुद से सॉल्व करेंगे ना तो आपको जो है ना क्लियर आइडिया हो जाएगा कि क्या हो रहा है। ठीक है सर। ठीक है, तो आज यहीं तक ही रखते हैं। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में इसको फिर डिस्कस करेंगे। आप सबको ये करके आना है ये, ठीक है। मैं रैंडमली किसी से भी पूछूंगा तो उससे फिर स्क्रीन शेयर करवा के ना मैं फिर डिस्कस कर लूँगा, ताकि सारे स्टूडेंट भी इसको जो है ना वो अंडरस्टैंड कर लें।
क्लियर? यस सर क्लियर। ओके। अच्छा, मैंने जो है ना एक जनरली मैंने एक टास्क 36 को मैंने कहा था कि जो है ना टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स जो है ना, टोटल नंबर ऑफ लेक्चर हमने ऑनलाइन कितने लिए हैं और फिजिकल कितने लिए हैं। तो जिस तरह अभी 36 ने मुझे रिप्लाई किया था कि हमने जो है ना तकरीबन, यानी अपार्ट फ्रॉम दिस वीक, यानी इस वीक को छोड़ के अगर हम प्रीवियस वीक तक की बात करते हैं तो हमने कितनी क्लासेस ली हैं, लेक्चर्स कितने लिए हैं? ज़ीरो फोर। सर पिछले वीक तो नहीं लिए, बाकी तकरीबन सारे ही लिए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अप टू लास्ट वीक हाउ मेनी ऑनलाइन लेक्चर्स विल बी आर कंडक्टेड एंड हाउ मेनी फिजिकल क्लासेस? सर ये तो काउंट करना पड़ेगा, इस तरह याद नहीं। तो ये मुझे 36 ने तो भेजा है। आई जस्ट वांट टू काउंटर चेक। ये मुझे आप ज़रा कैलकुलेट करके ना मुझे आप मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है ना? ओके सर। ठीक। ठीक है। तो उससे क्या होगा कि हमें अंदाज़ा हो जाएगा जिस तरह की फिजिकल क्लासेस कितनी हुई हुई हैं और ऑनलाइन कितनी हुई हैं, तो टोटल नंबर ऑफ लेक्चर्स उसको हम ऐड कर लेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको काउंटर चेक करना चाह रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। अगर आपका एक सर मिनट 23, एक मिनट 23, एक मिनट। अगर 04 में आपसे आपको मैं कह रहा हूँ कि इसको कंफर्म भी कर लीजिएगा कि अगर किसी हो सकता है कि कोई क्लास आपसे मिस हो गई हो, तो उसको कंफर्म भी कर लीजिएगा ना, ताकि मुझे एक एग्जैक्ट फिगर मिल जाए। चलो सर ठीक है, मैं देख लेता हूँ। यस 23। सर ये मुझे जो है ना ये जो आपने प्रॉब्लम सर जहाँ से उठाएंगे सर इसकी वेबसाइट से बता देंगे तो सर होगी, ताकि मैं प्रैक्टिस कर सकूँ सर इसके बारे में। यार इसकी जो है ना वेबसाइट नहीं है, ये मैंने एक बुक से जो है ना इसकी जो है ना स्नैप्स ली हैं। तो अगर आप बुक कहेंगे तो मैं आपको बता सकता हूँ बुक, उसको उसकी आप पीडीएफ अगर सर आपको आप मिल जाती है यस सर, अगर आप पीडीएफ ही भेज देते सर तो तो। होगी सर, ताकि सर थोड़ी प्रैक्टिस करना शुरू कर दे अभी से। हाँ, बुक की जो है ना पीडीएफ मैं देखता हूँ मेरे पास अगर है, क्योंकि मेरे पास ये बुक जो है ना फिजिकली है, तो मैंने उसकी इमेज ली है। बाकी ये बुक मैंने क्लास जैसे अपना सेशन हमारा स्टार्ट हुआ था तो मैंने बताया था कि डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय सिल्वेनियन के नाम से बुक है। तो अगर उसको अगर आप सर्च करेंगे तो मेरे ख्याल में उसकी पीडीएफ मिल जाती है। फिर भी मैं सर देखता हूँ अगर डिजिटल मेरे पास प्रोसेसिंग नाम है। डीएसपी, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग बाय सिल्वेनियन। सर अगर आप देख दें सर तो मेहरबानी होगी सर। मैं देख लेता हूँ, वरना ये क्योंकि मैंने थोड़ा सा सर्च किया था, इसकी पीडीएफ मुझे मिल रही थी लेकिन वो इनकम्प्लीट थी। इनकम्प्लीट इस सेंस में थी कि कुछ पेजेस बीच में, मतलब जो होता है ना कि वो बिल्कुल मतलब स्किप किए हुए थे। तो इस वजह से आई एम नॉट ओके श्योर कि, तो अगर मिल जाती है तो मैं आप देख लेता हूँ, वरना अदरवाइज फिजिकल तो मेरे पास पड़ी हुई है बुक, वो मैं आपको मतलब ओके सर। उसकी जो है ओके ना, हाँ मिल जाएगी, मसला नहीं है। पीडीएफ थोड़ा सा आप ढूंढेंगे तो मिल जाएगी। मैंने तो ओके ऐसा ही सर। चेक किया था तो मुझे। एनी अदर क्वेश्चन?